So ज़्यादातर लव स्टोरीज में क्या होता है, बॉय meets girl and girl meets boy and they fell in love and somehow they got some problems and after that they'll get married. So how different your film is? हर कोई लव स्टोरी किसी प्रॉब्लम के बिना तो कंप्लीट नहीं होती। खाना तो बन गया बट मसाला नहीं डाला। जब ये बहुत हंसमुख फिल्म है, से बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं। Who is your role model like in acting? फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मैं उनसे बहुत क्लोजली काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। वो जो मैंने उनसे सीखा है तो मैं उनसे बहुत अभी भी मतलब आप माने कि अभी भी 4 साल हो गए, अभी मैं उनको मिलने जाता हूँ तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख के बाहर आता हूँ। आप किसमें माहिर हो and what you like personally? Is it comedy or? जब मैं एक दिन चाहता हूँ कि मैं Great. No, I came to know from somewhere like you did workouts for almost 12 to 13 hours a day. So why and how tough it is? एक दिन मैं अलू सर की तरह डांस कर सकूँ, कोशिश है मेरी। Who's your favorite? आई वॉच तेलुगु, मैं दुलकर सर की बहुत पिक्चरें देखता हूँ, अलू सर की फिल्म। Hi, it's very pleasant to meet you here. And पहले आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ and I welcome you to the dream world of cinema. Thank you sir, thank you so much. So हमने सुना है कि नवरात्रि के बारे में सुना है, लेकिन ये लवरात्रि क्या है? सर ये बेसिकली एक फिल्म है जिसमें नवरात्रि के बीच में एक लड़का और लड़की को प्यार हो जाता है। वो नवरात्रि के गरबा खेलते खेलते एक दूसरे को मिलते हैं। सो इसके दरमियान एक बहुत प्यार होता है। जैसे गुजरात में कई लोगों को नवरात्रि के बीच में अपना लव पार्टनर मिलाती हैं जिनसे उन्होंने शादी कर ली, तो इसलिए हमने इस फिल्म को एक लव रात्रि का एक वो दिया कि इट इज़ नवरात्रि में एक प्योर लव स्टोरी बनती है, इसका नाम इसको हमने लव रात्रि बोला है। Okay. And is it by choice or by chance? I mean, becoming an actor. So it is chance in the beginning and then became a choice. Okay. So it was a chance that I got associated to a family who's very well versed with the film industry, who knows how to become an actor. And once I started assisting, once I started working with them, that's where it became a passion. It became that even I want to do it, even I can achieve it. And luckily, I was lucky enough to have them as a guiding force, and they really taught me the whole trade of films and taught me the acting and everything. Okay. So it's both. See, the thing is, I mean, when you work on something like you did an assistant director's job for Bajrangi Bhaijaan and some more films, right? Yeah. But how come you turned an actor? I mean, rather than a director. So actually, I was training to be an actor first, but Salman Bhai had an idea. He said, Ayush, to learn how to use what I'm teaching you, you have to be on set. And there are a lot of different things you need to know as an actor. You need to understand the camera, you need to understand the lighting, you need to understand dialogues, you need to understand everything practically. Like as an actor, when you go to an acting workshop, they'll teach you in a room how to give 1 take, 2 take. But on set, there are so many different factors. How to act in for the camera, how to give multiple retakes, how to perform for different cameras at one time. So that is what he wanted me to learn. So he said also being on set, I will not only learn from him, I will learn from every actor who's on set. Okay. So you get to learn not only his work, you get to learn I learned so much from Munni, the girl Harshali who played Munni in Bajrangi. So that is the reason why he said you be an assistant director, you learn the acting, you also understand the life of an actor. You understand the number of hours you have to be on set and number of what you have to do even post pack up to become an actor. So कभी-कभी ऐसा होता है कि like आप एक्टर बनना चाहते हो लेकिन वो बहुत अच्छा लग के कई फिल्म बनाने चले हो क्या? मुझे फोटोग्राफी का शौक पड़ गया सेट पे। I was never into photography, but when I became on set थोड़ा शॉट सीख के कि शॉट है, मुझे भी कैमराज लेंसेज थोड़ा शौक पड़ गया तो मैंने भी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी सीख लिया। इसमें अर्पिता का रोल क्या है हीरो बनने में? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सर, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बिकॉज वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। उसने मुझे सब कुछ सिखाया है, उल्टा मोर देन एनीथिंग। जैसे भाई के साथ ट्रेन करता था मैं, तो उनको एक मुझे मोटिवेट रखना
मुझे ये एक मेरे ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करना। क्योंकि क्या है ना सर कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में वो बली बड़ी है तो उसको पता है कि एक्टिंग इतनी आसान नहीं जितनी लोगों को लगता है। उनको लगता है कि फिल्म में एक्टर बना तो बहुत आसान काम होगा, बट उससे पता है कितना हार्ड वर्क जाता है। तो वो मुझे वो काफ़ी मोटिवेट करती थी, काफ़ी ड्राइव देती थी कि यार तुम काम करो, हार्ड वर्क करो। तुम अगर काफ़ी 2-3 दिन हम लोग सेट पे फ़ोन पे बात नहीं होती थी तो वो समझती थी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी आपको लगता है क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा ये। तो एक बिलीफ रखना कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है वो बात, वो सपोर्ट देना। तो वो तो मतलब आई वुड से कि वो पूरी स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ी बैकबोन है हमारी मेरी लाइफ की। Yeah, but the thing is, I mean, you have a very good backup. Like Salman Khan is producing the film, and it's easy. I mean, getting a film is very much easy, but at the same time, it is a big tough task. That is for sure, because you have to. I mean, you have to deliver the right goods. So, इसके बारे में आपका आपने क्या सोचा है? जी देखिए, मेरे पास, मैं फिल्म इंडस्ट्री का तो एक्चुअली हूँ नहीं। मैं एक फिल्म फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, बट क्योंकि मेरी शादी अर्पिता से हो गई और मैं सलमान भाई से रिलेटेड हूँ तो मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों को लगता है कि आप सलमान खान के रिलेटिव हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, आप ख़राब काम मत कीजिए। तो मेरे लिए एक एडवांटेज भी है कि मैं नया हूँ, बाहर से आया हूँ, तो मेरे अंदर एक हंगर है। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा होता है, उस आदमी को बचपन से वो सेट पे जाता है, बचपन से वो समझता है एक्टिंग क्या है, कैसी फिल्म बनती है, फिल्म के पीछे कितना काम होता है। मुझे इस सब का एक्सपीरियंस नहीं था, तभी मुझे 4 साल लग गए ट्रेनिंग करने में, हार्डवर्क करने में, असिस्ट करने में, पूरी वर्कशॉप्स कंप्लीट करने में, ताकि मुझे सब समझ में आए। एंड मैं जानता हूँ कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है मेरे साथ, मेरे ऊपर, और स्पेशली भाई के फ़ैन के साथ, क्योंकि अगर किसी फिल्म में भाई ने अपना नाम दिया है, सलमान खान लिखा है उसके ऊपर, तो एक सर्टन उनके फैंस चाहेंगे कि एक अच्छी फिल्म बने। उसने एक टीजर रिलीज़ किया ट्विटर में, तो उसका बहुत बढ़ सकता है, या ये पूरा फिल्म निकाल रहा है यहाँ पर। तो एक थोड़ा हो जाता है कि एक प्रेशर तो है। तो मेरा बस एक उम्मीद है कि जब लोग ये फिल्म देखें, जब लोग थिएटर से बाहर निकलें, तो मेरे हार्डवर्क को पहचान सकें और ये बोलें कि हाँ, मेरी विक्ट्री इसमें है कि लोग आके बोलें कि चलो ये रिलेटेड तो है सलमान भाई से, बट ये एक्टर डिजर्व करता है इसको एक्टर बनना। तो मेरी बस वही उम्मीद रहेगी। So the big date is coming. How nervous you are, like? Sir, I'm nervous, but I'm very excited. Oh. I am nervous because I feel एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरी नवरात्रि की, जब ख़त्म हो रही है। अब कभी कभी लगता है कि अरे यार वो कैरेक्टर ख़त्म हो गया, बट एक्साइटमेंट इस बात की है कि अब मैं पीपल का रिएक्शन लूँगा। अब जिस गानों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो गाने हमने 1 साल तक सुन रहा हूँ मैं, तो अब वो गाने पब्लिक के सामने आएंगे, अब उनका क्या रिएक्शन होगा, वो पसंद आएंगे ना पसंद आएंगे। ट्रेलर मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको ट्रेलर पसंद आए, उनको फिल्म पसंद आए। और जैसे हम लोगों ने फिल्म को शूट करते हुए बहुत मस्ती की है, हमारा फिल्म का क्रू बहुत यंग था और हम बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने सेट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग ये फिल्म देखें वो भी इंजॉय करें इस फिल्म को और बाहर आके बोले कि मज़ा आ गया। सो ज़्यादातर लव स्टोरीज में क्या होता है, बॉय मीट्स गर्ल एंड गर्ल मीट्स बॉय एंड दे फेल इन लव एंड समहाउ दे गॉट सम प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर दैट they'll get married. So how different your film is? Sir, हर कोई लव स्टोरी किसी प्रॉब्लम के बिना तो कंप्लीट नहीं होती। आई थिंक अगर लव स्टोरी बिना प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाए तो मज़ा ही नहीं है उसमें। वो बोलते हैं ना, खाना तो बन गया बट मसाला नहीं डाला, तो वो एंगल तो रहता ही है। बट ये अलग इस तौर से कि इस फिल्म में आपको एक बहुत, आप वो समझते, एक प्यार होता है ना, जब आप लड़की आपको चाहती कि नहीं चाहती, आप उस फेज़ पे हैं, ये वो फीलिंग है उस फिल्म की। इसमें आपको एक प्योरिटी मिलेगी, एक इनोसेंस मिलेगी कैरेक्टर्स की, एक स्टोरी लाइन की जो बहुत ऑनेस्ट है, जो आपको आपके पहला रिलेशनशिप तक ले जाएगी, पहली बार जब आपको कोई लड़की पसंद आई थी। तो एक हम इसको सेलिब्रेशन ऑफ लव कह रहे हैं। ये बहुत हंसमुख फिल्म है, से बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं, रोमांटिक मोमेंट्स हैं, जो कई लोग अपने डिफरेंट सेट के ऑडियंस इसे इंजॉय कर सकेगी। तो हम ज़्यादा दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं इस फिल्म में, हम दिल को जोड़ते हैं। हम ये बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपको कैसे लड़की से प्यार हो गया तो अब तो उसके पीछे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बैरियर बड़ा नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं, लाइक देयर विल बी अ बिट ऑफ कंट्रोवर्सी व्हेन यू नेम योर फिल्म इज लव रात्रि, बिकॉज नवरात्रि माने आई मीन दुर्गाष्टमी ये सब होता है। सो लव रात्रि अगर द टाइटल रखा तो
कोई प्रॉब्लम हो जाएगा लाइक? सर एक्चुअली ऑनेस्टली एक मेरा एक विश्वास है, मैं खुद एक पंडित हूँ, कि आप जब आप किसी भी धर्म के बारे में बात करते हैं, किसी भी फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, वो हर चीज़ में एक प्यार का त्यौहार होता है। आप दिवाली लें तो आप दिवाली में अपने परिवार के साथ एक प्यार होता है, सबको घर बुलाते हैं, आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली हो, आप सबसे मिलजुल के होली का रंग लगाते हैं। वैसे ही नवरात्रि है, उसमें आपको एक प्यार का त्यौहार है, आपका प्यार चाहे माँ की तरफ हो चाहे पूजा की तरफ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार की बात कर रहे हैं, आप नफ़रत की बात तो कर नहीं रहे हैं, आप किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ समथिंग कि आप जब देखेंगे, आप फिल्म भी देखेंगे, ट्रेलर भी देखेंगे, तो आप समझेंगे ये फिल्म इतनी प्योर है कि सर आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, आप अपने माँ बाप को दिखा सकते हैं, आप अपनी वाइफ को दिखा सकते हैं, और आपको किसी भी मोमेंट पे, किसी भी सीन पे ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये नहीं यार ये मेरे बच्चे अनकंफर्टेबल हैं, नहीं देख सकते इस चीज़ को, या मेरे फादर मदर क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में, ये प्योर फैमिली फिल्म है। और हम एक ही चीज़ इसमें कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट लव, ये जस्ट सेलिब्रेट लव। तो नवरात्रि इज़ अ मोमेंट कि कितने लोग ऐसे हैं गुजरात में हैं जिनको नवरात्रि के टाइम अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। और ऐसा मेरे साथ पर्सनली हो गया है कि जब हम टीज़र देखने गया था मैं थिएटर पे, तो एक कपल ने आके मुझे बोला कि हम लोग नवरात्रि बड़ौदा में नवरात्रि के टाइम पे मिले थे, और आज हम शादीशुदा हैं और हमारे पोते हैं। ओह ग्रेट जी, तो मेरे को भी ऐसी फील हुई कि इट इज़ उनको अपना एक पास्ट याद आ गया ये टीज़र देख के। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी प्योर। So I mean, who is your role model, like in acting? इन एक्टिंग Yeah. सलमान भाई, Okay. फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मैं उनसे बहुत क्लोजली काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं एक्टिंग के बारे में, करियर के बारे में, और बहुत सारा कि इतना बड़ा स्टारडम होने के बाद में वो कितने डाउन टू अर्थ आदमी है, वो जो मैंने उनसे सीखा है। तो मैं उनसे बहुत अभी भी, मतलब आप माने कि अभी भी 4 साल हो गए, अब भी मैं उनको मिलने जाता हूँ तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख के बाहर आता हूँ। चलो ये नवरस होता है ना लाइक इन एक्टिंग, सो आप किसमें माहिर हो एंड व्हाट यू लाइक पर्सनली, इज इट कॉमेडी और? सर मैं एक दिन चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्शन फिल्म करूँ, ग्रेट। एक अच्छी एंटरटेनिंग एक्शन फिल्म करूं जो सबको एक्साइट करे। अभी मैंने शुरुआत लव स्टोरी से की है, और मैं धीरे धीरे करके हर एक स्पेस पे जाना चाहता हूँ कि एक्शन भी करूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरे को इंटरव्यू करें और आप मुझे ये बोल सकें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि मैं कुछ सालों में आपको प्रूव कर सकूँ कि मैं अच्छा कॉमेडी भी कर सकता हूँ, अच्छा डांस भी कर लेता हूँ, अच्छा एक्शन भी कर लेता हूँ, एंड एक अच्छा ऑलराउंडर आप बोल सकते हैं। No, I came to know from somewhere like you did workouts for almost 12 to 13 hours a day. So why and how tough it is? हमारा एक मानना था, जैसे भाई का एक मानना बहुत सिंपल है कि आपकी बॉडी आपको कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी शूटिंग कई बार आप 18-18 घंटे बैक टू बैक काम करते हैं आप, और कभी कभी आपको हमारे इंडिया में आप हीरो खुद एक्शन भी करता है, खुद डांस भी करना है, उस दिन एक्टिंग भी करनी है, और आपको दिखना भी अच्छा है तो जिम भी जाना है। तो एक बॉडी को एक यूज टू होना चाहिए उतना हार्डवर्क करने के लिए। मतलब आई थिंक आप हीरो कैमरे पे बाद में बनिए, पहले एक हीरो मतलब एज इन आप ऑफ कैमरा उतना हार्डवर्क डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितने लोग हैं जो सेट पे, अगर जैसे आप मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ, आज मैं बोलूँ मैं जिम नहीं जाऊँगा तो मैं एक सर्टन वे नहीं दिखूँगा, इसलिए उन्होंने मुझे काफ़ी क्लासेस में डाला। जैसे स्टार्ट किया जिमनास्टिक से, सुबह उठ के जिमनास्टिक करो, तो जंप करो, रोल करो, क्योंकि वो चाहते थे मैं खुद का एक्शन खुद करूँ, वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ स्टंट डबल को बोलूँ कि आप मेरा एक्शन कीजिए। वैसे ही आप एडिक्शन की क्लासेस थी, ज़बान की क्लासेस, आप एक्टिंग के लिए थे हम लोग, और कभी क्लासेस डांसिंग की थी, क्योंकि डांसिंग का कितना फॉर्म है। जैसे आप बॉलीवुड डांसिंग एक होती है, हिप हॉप अलग होता है, सालसा अलग है, कितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं डांसिंग के जिसमें आप जा सकते हैं। वैसे ही बॉडी भी एक चीज़ है, क्योंकि आप सलमान खान, अगर फिल्म के ऊपर सलमान खान लिखा है और बॉडी ना हो तो गलत हो जाएगी बात, इसलिए बॉडी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को एक दिन में हम लोग ट्रेन करते थे, हार्डवर्क करते थे इस चीज़ पे कि बॉडी को आदत पड़ जाए ऐसा काम करने की। Okay, you learn dance forms like how many dance forms? सो आई वाज ट्रेन्ड इन हिप हॉप एंड बॉलीवुड। अभी आप बोल सकते हैं कि मैं गरबा भी कर लेता हूँ। नहीं, I have seen the teaser and you dance like superb. मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन मैं अलू सर की तरह डांस कर सकूँ, कोशिश है मेरी कि अगर मैं उनकी तो एक दिन किसी स्टेज में थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा उनके जैसा, बट थोड़ा बहुत मैं मैच कर सकूँ। And कोई टिप्स मिला है एक्टिंग के बारे में सलमान भाई से? मुझे एक्चुअली उन्होंने ज़्यादा एडवाइस नहीं दी एक्टिंग के लिए, मुझे सबसे बड़ी एडवाइस दी मेरे फादर इन लॉ ने। मैं जब शूटिंग से एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आयुष एक्टिंग को एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ कि एक्टिंग का क्या है। तो सर जी, उनसे एडवाइस मिलना बहुत बड़ी बात थी।
कहते act like you're already successful. Coming back to the movie, like हीरोइन भी नया है ना, like वरीना, so थोड़ा बहुत उसके बारे में. सो एक्चुअली वरीना अफगानिस्तान से वो अफगानिस्तान से कुछ साल पहले इंडिया आई थी. थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर रही थी, एड्स किए उसने. हमको एक नई लड़की की ज़रूरत थी इस फिल्म में और हम चाहते थे कि इस फिल्म में ऐसा एक पर्टिकुलर लुक चाहिए था. तो वरीना हमने एक ऑडिशन का एक कॉल निकाला था कि पूरी कंट्री से हर एक आदमी ऑडिशन कर सकता है इस फिल्म के लिए. तो उसमें वरीना ने अपनी टेप भेजी. वैसे वो फिल्म में आई और उसने बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है. उसने लैंग्वेज पे कमांड लिया, उसने गरबा सीखा, उसने सब कुछ हार्ड वर्क किया इस फिल्म को लेने के लिए. और अभी वो हमारी फिल्म में आई है और काफ़ी सरप्राइज़ किया है उसने हम अपने डांस स्टेप से, अपनी एक्टिंग से. सो काफ़ी अच्छा लगा उससे काम करके. एंड अभी डायरेक्टर, like I mean when he approached you with the script, so what exactly I mean motivated you to, yes, I'll do this project? जी ऑनेस्टली इट वाज द इनोसेंस ऑफ द स्क्रिप्ट. मुझे कहीं ना कहीं एक फिल्म में एक इनोसेंस लगी. मतलब इसमें कमर्शियल एलिमेंट सब हैं, एक अच्छा डांसिंग है, म्यूज़िक है, परफॉर्मेंसेस हैं, मगर इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत इनोसेंट हार्ट है. और अभिराज इन समवेयर हैड द कन्विक्शन कि ही वांटेड टू मेक दिस फिल्म गुजराती है बट ऑल्सो पैन इंडिया फिल्म. आप इवन यू आर वाचिंग इन हैदराबाद, यू कैन वॉच द फिल्म एंड नॉट फील कि दिस इज अ गुजराती फिल्म. इट्स अ पैन इंडिया फिल्म. So he had the right vision for it, and he also somewhere believed this film has to. हमारा goal था before we started the film that when people walk out of the theater, they should have a smile on their face. That they should have that we had a good time. We saw a nice film. We laughed. We enjoyed. That was our goal. So that is something which is what I want to do. I want to entertain people. I want people to come out of the film and say कि whatever price I paid for this ticket, I have got that money back. That is something that हमने उससे बैक ट्रैक किया और मेरा उसका लवरात्रि इज अ स्क्रिप्ट लाइक दैट. दैट्स रीजन व्हाई आई डिसाइडेड टू डू लवरात्रि. ओके, सो हैदराबाद के बारे में आप हैदराबाद में बहुत फेमस हो चुके हैं हाँ उस दिन से. सो आई मीन आपका ख्याल क्या है हैदराबाद के बारे में? मेरे लिए हैदराबाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी रहेगा क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है हैदराबाद में और जिस तरीके से हैदराबाद ने उस टाइम हमको प्यार दिखाया था जब मेरी शादी यहाँ पे हुई थी, तब से मेरी लाइफ ने एक बहुत अच्छा टर्न लिया है. बहुत अच्छा चीज़ें हुई हैं जब से हैदराबाद से मेरी शादी हो गई. अब मेरा एक बच्चा है, लाइफ बिल्कुल अच्छी हो गई और मैं अभी हैदराबाद वापस आया हूँ टू स्टार्ट द कैंपेन ऑफ लवरात्रि, प्रमोशन ऑफ लवरात्रि. तो जब से हैदराबाद अपना लकी चाम मांगता हूँ कि जब कभी सोचा ऐसा मैं हीरो बन के हैदराबाद में मैं नहीं. जब मेरी शादी थी तब तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर वापस आके फिल्म प्रमोट करूँगा. और बट वो भी 4 साल के बाद वापस आऊँगा. बट अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने सोचा कि हैदराबाद हैज़ ऑलवेज बिन नाइस टू मी, हैज़ बिन लकी फॉर मी. सो मैंने कहा चलो लवरात्रि का भी जर्नी हम हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं. एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद हैव ऑलवेज वर्कड फॉर मी. आई होप दे वर्कड फॉर मी दिस टाइम एज वेल. But while making the film and you went to work with Bajrangi Bhaijaan and all other films, maybe अर्पिता बहुत मिस हो गया ना आपको? जी, वो करती थी, काफ़ी मिस करती थी मुझे. स्पेशली कश्मीर में, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था. काफ़ी टाइम हम ऐसे लोकेशन पे शूट करते थे जहाँ पे काफ़ी दिनों तक बात नहीं होती थी. बट उसको पता था कि ये ज़रूरी है. उसका सपोर्ट इसलिए अच्छा रहा है क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से है तो उसको पता था कि इस टाइम पे हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है. वो जानती थी कि अभी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. तो दिन थोड़ा बहुत बात होती थी हमारी, बट फिर भी वो बिल्कुल एक्साइटेड थी. कभी कभी आती थी मिलने के लिए सेट पे, हम काम करते थे. तो मिस तो करती थी, मैं भी काफ़ी मिस करता था. अभी भी हाल फिलहाल जब लवरात्रि शूट हुई तो गुजरात पे तो आहिल और अर्पिता नहीं थे, तो उनको भी काफ़ी मिस किया मैंने इस बार. पर उन्होंने कंपनसेट किया लंदन में आए थे मुझे मिलने के लिए. तो अच्छा लगा. एंड आप तेलुगु फिल्म देखते हैं? देखता हूँ सर. Who's your favorite? Sir, I watch Telugu, I follow Kannada, I follow everything. मैं सब देखता हूँ. Honestly मैं ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज में क्या है. बट आई वॉच एनीथिंग फॉर प्योर एंटरटेनमेंट. मैं काफ़ी अभी रिसेंटली मैंने फिल्म देखी पहली चुपलू, वो मेरे को बहुत पसंद आई थी. मैं दुलकर सर की बहुत पिक्चरें देखता हूँ. उनकी फिल्म बहुत अच्छी होती है. अलू सर की फिल्म, उनको तो गाने के लिए मैं मतलब यूट्यूब में मैक्सिमम टाइम हम डांस रिहर्सल पहले हम अलू सर की एक गाना देख लेते हैं. एक मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी थी नन्नू राउडी.
वो भी फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी विक्रम वेदा बहुत अच्छी थी विक्रम वेदा बहुत अच्छी फिल्म है And I think Shah Rukh Khan is going to. जी he has the rights for that. It's a brilliant film. So लवरात्रि के म्यूजिक के बारे में. जी हमने एक मल्टी कंपोजर सेटअप रखा था लवरात्रि के लिए कि डिफरेंट लोगों ने अपने गाने दिए हैं. हमारे पास ज़्यादातर गाने हमने तनिष बागची साहब ने दिए हैं और दूसरे एक गाना डीजे चेतस ने दिया है जो छोकरा तारा जो रिलीज़ हुआ है. हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं इस फिल्म में. हमारे पास हनी सिंह हैं, बादशाह हैं, हमारे पास उदित सर हैं, आतिफ असलम हैं, दर्शन रवेल हैं और असीसी ने गाना गाया. तो हमारे पास काफ़ी बड़ा ensemble कास्ट है गानों का. हमारे पास 7 गाने इस फिल्म में, तो अच्छा है. You can be called as an outsider to Bollywood actually. So how tough it is to an outsider to get into the Bollywood? Very. I think it's very difficult. It can, you need to be very lucky to get that kind of roles. But touch wood, times have changed. People are getting a lot of work nowadays because abhi web series aa gayi hain. Yeah. There is Netflix, there is Amazon, there's TV. TV is doing great stuff. It has more reach. TV has more reach than movies. Some of the movie actors are not as popular as TV actors. And so is also the regional cinema has increased so much that people can come from somebody जो Bollywood में can come to work down south, somebody from south can come to Bollywood, go to Punjabi films, बहुत काम आ गया है अभी टाइम पे. So it is about getting the right film and more so about your hard work and talent. If I think you have hard work and talent, कहीं ना कहीं तो आप आगे बढ़ ही जाओगे. Yeah, so it is difficult obviously to get a lead role. Like I can say I'm lucky that I have a film like Lavratri, where I can say that I'm leading a film like Lavratri, but over and above that I don't think so I deserve it. आप ये मानते हो like acting को सीखना है? Some people like they are like born artists, and people like you have to learn acting. So what you believe? So I believe acting is a very natural process. I am not qualified right now to talk about acting because this is my first film. I hope and pray that 20 years later, if I have a career like Salman Bhai, when I've done enormous number of films and they have worked, you and me can sit down, chat, and that day maybe I have some revelations about acting. But today I feel I'm a student. I'm a student of acting. I'm learning myself, and everybody has their own process. Everybody thinks that they know acting. For me, I think I don't know acting. I'm learning. Are you religious? Like you believe in God? I believe in God, yeah. Okay. Yeah, I believe in God, but I believe in all God. So, what you want to say to our Hyderabad audience regarding Lavratri? Full entertainment. Okay. I would like the people for Hyderabad to see that this is a film that is going to thoroughly entertain them, make them laugh, make them cry, make them fall in love. And I can guarantee you them that they will come out of the film smiling and having a good time. And I would request them to please watch the film. Please come out. Hyderabad has always shown me the love. It showed me the love last time and my life changed. I hope this time also they come out and give me love, and they come and give me love. My life will change again. So I'm requesting them. And I wish you all the best. And मैं hope करता हूँ ये लवरात्रि मैंने प्यार किया हो जाए. Thank you, sir. Thank you so much. Big compliment. Thank you. Hi, this is Ayush Sharma. Please keep watching India Glitz. It's a beautiful platform, and please follow the platform to know updates about Lavratri. Follow Lavratri. It's releasing on 5th October. Thank you. Hi. Hi India Glitz viewers. For all the latest movie reviews, Interviews. Latest updates. Subscribe. Subscribe IG Telugu. Please subscribe to IG Telugu. Please follow IG Telugu. Please subscribe to IG Telugu.